Hello students, last class we have read about Gauss theorem, right? We have seen a statement of Gauss theorem and we have proved Gauss theorem, right? Today in this class we will start application of Gauss theorem. Fine, there are 4 applications. We start with the first one. First application is electric field. We have to find electric field due to an infinitely long straight charged wire. एक वायर जो infinitely long का मतलब होता है एंड हम लोग को पता नहीं है, बहुत लंबा है, राइट? वो क्या है? फुल्ली यूनिफॉर्मली चार्ज है. वो क्या है? फुल्ली यूनिफॉर्मली चार्ज मीन्स ऐसे लिख सकते हैं दिस लाइन चार्ज इज फुल्ली यूनिफॉर्मली चार्ज, right? Due to this line charge, we have to find electric field. Electric field due to point charge we have read, that is kq by r square. Electric field due to dipole we have read, that is kp by r cube. Right? Now we will find electric field due to infinitely long straight charged wire or conductor. Clear? At a distance, of course, QS की distance निकाले, that distance is how much? R. At this distance. Fine? It means we will find at this point. Let this point is P. Fine? So, first of all, this is the application of Gauss theorem. To apply Gauss theorem, what we need? If you remember, Gauss theorem is applicable for closed surface, and that closed surface is known as Gaussian surface, right? To apply Gauss theorem, first of all we need a closed surface, that is Gaussian surface, and Gaussian surface is an imaginary surface such that electric field at each point of the Gaussian surface will be equal. This we have read. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन चार्ज गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे. यू कैन सी दिस डॉटेड लाइन, पहले से बना लिया. दिस इज अ डॉटेड लाइन. क्या ये सिलेंडर है? फाइन. तो डॉटेड बाय डॉटेड मींस इमेजिनरी. तो हमेशा ध्यान रखना गॉसियन सरफेस को हम हमेशा इमेजिनरी लाइन से डिनोट करते हैं, डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं क्योंकि वो इमेजिनरी होता है, राइट? दिस इज एन इमेजिनरी सरफेस. गॉसियन सरफेस किस तरह का है? सिलिंड्रिकल है. Fine. So consider a cylindrical Gaussian surface of radius r and length L. This length is how much? L. और क्या खास बात है, इसका जो एक्सिस होगा, इसका इस गॉसियन सरफेस का जो एक्सिस होगा वो कहां से पास करेगा? इस इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर से पास करेगा. डायग्राम क्लियर है? अब हम लोग जानते हैं जो गॉस सिलेंडर जो होता है कितने सरफेस से मिलकर बना रहता है? 1, 2 और नीचे वाला 3. फाइन. 2 टॉप एंड बॉटम, दैट इज सर्कुलर, एंड 1 इज कर्व सरफेस. फाइन. तो सिलिंड्रिकल एनी सिलेंडर, कोई भी सिलेंडर जो बनता है 3 सरफेस से मिलकर बनता है, राइट? हम लोग क्या किए, गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली. राइट एंड लाइक दिस आल्सो. स्टेप 1, कंसीडर a cylindrical Gaussian surface of radius r and length L and with its axis along the line charge. ठीक है? Now, since this is infinitely long charge, what we take? We take lambda as linear charge density. Lambda as linear charge density. Now, what do you mean by linear charge density? Linear charge density means charge per unit length of the wire. ठीक है? Charge per unit length of the wire. That is what? Lambda. This one. Lambda is equal to linear charge density of wire or charge per unit length. ध्यान से समझना. Step 3. Step 2. First of all, गॉस थ्योरम को याद करो तो हम लोग को जरूरत किस चीज की पड़ती है? इनक्लोज्ड चार्ज की. इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, फर्स्ट वी विल कंसीडर दैट. तो चार्ज
enclosed, charge enclosed is how much? Think, that is small q is how much? लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी एंड कितना लेंथ इस सिलेंडर के अंदर है, वायर का कितना लेंथ इस सिलेंडर के अंदर है, एल यूनिट लेंथ का लैम्डा होता है चार्ज, तो एल लेंथ में कितना होगा, लैम्डा है। ठीक उसी तरह से एक आदमी अगर 2 रसगुल्ला खाता है, यूनिफॉर्मली 10 आदमी 20 रसगुल्ला खाएगा, राइट। यूनिट लेंथ हैविंग लैम्डा चार्ज, सो एल लेंथ विल है, L length will have lambda L charge. This is charge enclosed. Now step 3. Step 3. What we will do? We'll apply Gauss theorem. So we will write according to Gauss theorem. Now we know Gauss theorem. We know what is Gauss theorem. Net electric flux phi is equal to closed surface integral is closed surface integral of electric field. This is equal to charge by epsilon naught. This q is what? Charge enclosed. Right? What we can write? This one is nothing but this is lambda L by epsilon naught. This is lambda L by epsilon naught. अब यहाँ पे समझने की जरूरत है, राइट? क्या समझना है हम लोगों को? ये जो फ्लक्स है, ये लैम्डा L by epsilon naught, तो हम लोग क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये सरफेस कौन सा सरफेस है? पहला सरफेस है, दूसरा सरफेस है, या तीसरा सरफेस है, या पूरा सरफेस है? ये जो सरफेस एरिया ds वो किसका है? ऊपर वाले का, नीचे वाले का, या कर्व्ड वाले का? ये जो ds है वो टोटल सिलेंडर का सरफेस एरिया, टोटल सिलेंडर का सरफेस एरिया है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? इस क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल को ओपन करना पड़ेगा। अगर क्लोज सरफेस को हम लोग खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो कितना सरफेस मिलेगा हम लोग को? 3 इन दिस मैनर ओनली। अगर आप लोग इसको यहाँ पे ओपन करोगे कितना मिलेगा? ध्यान से देखना। दिस इज इक्वल्स टू, फाइन, तो दिस इज फर्स्ट E dot ds plus second surface E dot ds plus this is third surface, that is again E dot ds. This is equal to lambda L by epsilon naught. कैसे वो समझ में आ रहा है? हम लोगों ने क्या किया? ये क्लोज सरफेस को ओपन कर दिया। 3 अलग अलग सरफेस है। दिस इज सरफेस 1, दिस इज सरफेस 2 and this is surface 3, right? नीचे वाला थर्ड है, ऊपर वाला सेकंड, और कर्व सरफेस क्या है? सेकंड है। तो सबका अपना अपना E डॉट ds होगा, हर जगह पे अपना E होगा और उसका अपना सरफेस एरिया होगा। क्लियर है? अब देखते हैं डॉट प्रोडक्ट है, तो A डॉट B क्या होता है? AB cos थीटा, यहाँ पे EDS cos थीटा होगा। थीटा विल बी द एंगल बिटवीन E and ds. We'll try to understand what is the angle between electric field and surface for first surface, similarly for the second surface and for the third surface. ध्यान से देखो जल्दी जल्दी। ये तुम्हारा लाइन चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव की वजह से हमेशा अवे। पढ़े हम लोग, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज। तो अवे मतलब इसकी वजह से यहाँ पे अवे फ्रॉम द चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पे away from the charge, इसकी वजह से यहाँ पे away from the charge. So this blue lines shows the direction of electric field at surface 1, surface 2 and surface 3. Right? समझ में आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से हमेशा क्या होगा? किसी पॉइंट पे अवे होगा। यहाँ अगर लेते तो इस साइड होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, राइट? सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? सरफेस। सरफेस का डायरेक्शन क्या होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव कंसीडर्ड दिस रेड रेडार स्मॉल ds, स्मॉल सरफेस एरिया वी हैव टेकन, राइट? तो इस सरफेस एरिया का नंबर 1 का एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर, नहीं नहीं, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। नीचे वाले का
अगर कोई तुम एक बॉटल पकड़ोगे, नीचे वाला सरफेस का सरफेस एरिया किधर होगा? डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर एंड डाउनवर्ड, दैट इज इसके लिए वो आउटवर्ड हो जाएगा लाइक दिस. दिस इज ds, दिस इज ds एंड दिस इज ds. इसी डायरेक्शन में होगा, कर्व सरफेस का उसी डायरेक्शन में होगा. अब आपको साफ साफ दिख रहा है फर्स्ट सरफेस पे इस दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री. इस दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री. और सेकंड सरफेस में दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री. तो वी कैन पुट द सेम थिंग. तो लिखते हैं हम लोग तो यहां से लिखूंगा मैं, यहां से फर्स्ट सरफेस के लिए देखते हैं क्या हो जाएगा. EDS cos फर्स्ट सरफेस में 90 दिस इज फॉर फर्स्ट सरफेस प्लस EDS cos 0 दिस इज फॉर सेकेंड सरफेस एंड प्लस EDS cos 90 again this is for third surface and this all together is equal to lambda L by epsilon naught. अब ध्यान से देखो बहुत आसान हो गया. अब क्या हो गया ये? दिस इज थर्ड सरफेस. cos 90 0. अगर cos 90 0 है, अगर cos 90 0 तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0. तो फर्स्ट टर्म में 0. सेकेंड टर्म क्या है तुम्हारा? cos 0 is 1. If cos 0 is 1, then it will be like this EDS only for second surface. Yes or no? Again cos 90 for third surface 0. This is again 0. This is equal to lambda L by epsilon naught. Now what is this E? E is the electric field on the curved surface. कर्व सरफेस किसका है? गॉसियन सरफेस का है. और हम लोग क्या जानते हैं? गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कांस्टेंट होता है. Then from this integration we can take this E outside. You can take this E outside. बचेगा क्या? सेकेंड सरफेस ds is equals to lambda L by epsilon naught. फाइन. अब E क्या हो जाएगा? E equal to lambda L by epsilon naught divided by this. आपको सरफेस एरिया जानना. इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेट दैट इज एरिया. फाइन. ds कहाँ का है? सेकेंड सरफेस का है. सेकेंड सरफेस कौन सा सरफेस है? कर्व सरफेस है. तो कर्व सरफेस का सरफेस एरिया क्या होता है? सिलेंडर के कर्व सरफेस का सरफेस एरिया क्या होता है? दैट इज 2 pi r l. Right? So we can write here, or better I will run this one. Final left. Right? क्या लिखेंगे हम लोग? This is nothing but E into surface area of curved surface here. That is equal to lambda L by epsilon naught, or this is your E equal E into 2 pi r l. This is equal to lambda L by epsilon naught. तो फाइनली E हम लोग को निकालना था. हम लोग क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? देखो देखो E equal to lambda L by epsilon naught into 2 pi r l. 2 pi r l. तो l l क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो E क्या बचा अपना? E equal to lambda by 2 pi r epsilon naught. And lambda by 2 pi r epsilon naught. It means this is the electric field. This is the electric field due to a infinitely long line charge. Here we can see what? E is inversely proportional to r. E is inversely proportional to r. Means जैसे जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा. ये पहला चीज हो गया. बाकी जगह हम लोग क्या देखे थे? पॉइंट चार्ज की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था. डायपोल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब था. यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो ग्राफ कैसे खींचेंगे इसका? दिस इज ई, दिस वन इज आर. फाइन. ग्राफ कैसा होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है? ऑफ कोर्स ऐसा होता है. राइट. अगर क्वेश्चन आ गया ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन ई
एंड अगर क्वेश्चन आ गया ड्रॉ द ग्राफ और शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ 1/r, विथ 1/r, 1/r के साथ क्या होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/r के साथ क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा ग्राफ, ऐसा हो जाएगा। ये दो ग्राफ इसमें इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, राइट। नेक्स्ट we'll do the more 3 application. Okay, thank you very much.